All right, so let us start with next question, example 3.5. The initial velocity of an object is u bar, that is 5 I cap plus 10 j cap meter per second. Its constant acceleration is 2 I cap plus 3 j cap meter per second square. Determine the velocity and the displacement after 5 seconds. Question easy है. First of all, let us note down what is given to us. Given quantities में आपको initial velocity दिया है in vector form, that is 5 I cap plus 10 j cap, and of course meter per second. Acceleration आपको दिया है constant, that is 2 I cap plus 3 j cap meter per second square, and then you have been given time. Time is 5 seconds. Okay, so I will just write down 5 like this and s. So it is 5 seconds. And you are supposed to find out, you are supposed to determine velocity. Velocity मतलब final velocity, क्योंकि initial तो दिया है. So you are supposed to find out final velocity number 1, and number 2 you are supposed to find out displacement s after 5 seconds. So formula you should be able to recall. Formula number 1. पहला formula you should know, v bar equal to u bar plus a bar t. v equal to u plus a t हमने स्केलर फॉर्म देखा था. यहाँ पे v bar equal to u bar plus a bar t is vector form. And then number 2, s bar equal to u bar t plus 1/2 a bar t square. ये दो फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ओनली थिंग इज यू विल नो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे आस्क यू टू फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, तो आप वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला यूज करके छोड़ देते हो. लेकिन हियर वी हैव टू गो लिटिल अहेड. तो ऑफ कोर्स v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, ये तो फाइंड करना ही है. व्हाट इज u बार? 5 I cap plus 10 j cap plus what is a bar? 2 I cap plus 3 j cap, and time is 5. So this is 5 I cap plus 10 j cap plus 10 I cap plus 15 j cap. So this is 10 plus 5, 15 I cap, and this is 25 j cap. So this is 25 j cap. ओके, तो यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी मिल गया इन द वेक्टर फॉर्म आफ्टर 5 सेकेंड्स अंडर दिस गिवन कंडीशन. जो भी कंडीशन थे उसके अंडर हमको वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी. तो यस, यू कैन डू अप टू दिस स्टेज आल्सो, दैट इज करेक्ट. बट याद रखना, जब जब आपको वेलोसिटी पूछा हो तभी आपको उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी फाइंड करना है. एडिशनली यू आर सपोज टू फाइंड आउट डायरेक्शन. तो वो कैसे करेंगे? बट इट इज वेरी इजी. सो व्हाट यू कैन डू इज बाय कंपेयरिंग. आपको पता है इसको आप क्या बोलते हो? x कंपोनेंट. इसको क्या बोलते हो? y कंपोनेंट. देयरफॉर स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो x कंपोनेंट आपको पता है, x component is how much? 15, and y component is 25. Therefore v equal to under root of 15 square plus 25 square. Okay, so this is equal to how much is 15 square? 2 to 5, 2 to 5, 6 to 5. So this is 850, 850. Now 850 का रूट, how do you find out 850 का रूट? You know what is 30 का स्क्वायर? 900. तो 900 का रूट आएगा 30. हमारे पास 850 है. 850 मतलब 30 से कम. So do you know what is square of 29? 29. How do you find out square of 29? Easy. Look here. Wait.
don't do this. I don't want you to do this. 29 into 29 नहीं. Yes sir. 29 square is 29 into 29. I know that. पर एक काम करो, 29 into 30 कर लो. That is easy. क्योंकि ऐसा क्या होता है इसमें, इसको आप अलग रख सकते हो. 29 सीधा पता है. What is 29 सीधा? 87. हाँ 87. तो ये आ गया आपका 870. करेक्ट. आपको करना था 29 इंटू 29. आपने किया 29 इंटू 30. मतलब आपने 29 डबल काउंट किया, एक बार एक्स्ट्रा काउंट किया ना 29. सो माइनस 29. 841. वेरी गुड. तो 29 का स्क्वायर कितना? हमारे पास क्या नंबर था? मतलब अप्रोक्सीमेटली it is 29 point something. So it is approximately 29. Okay. यूनिट क्या लिखूं? क्या फाइंड कर रहे हो आप? vx स्क्वायर vy स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट. ये क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज नथिंग बट स्पीड. स्पीड मीटर पर सेकेंड में आएगा. तो यू हैव वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, you have magnitude of velocity मतलब speed, and you can of course find out direction. डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था आपको हमेशा tan of theta. Tan theta is y component upon x component. Those who don't know this, मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर नंबर 2 में इन डिटेल मैंने बताया कि ये कैसे आता है. सो व्हेन यू रिवाइज यू विल कम टू नो ये कैसे आता है. तो vy, what is vy? 25. What is vx? 15. So 25 by 15. This is tan theta. Therefore tan theta is 5 by 3. Therefore theta is tan inverse of 5 by 3. ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ देना. So this is the direction. Done. मेंशन कर दो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये हो गया पार्ट 1 खत्म. पार्ट 2 में क्या फाइंड करने के लिए बोला है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था? s bar इक्वल टू u bar t प्लस 1/2 a bar t स्क्वायर. सो s bar इक्वल टू u bar t प्लस 1/2 a bar t स्क्वायर. ओके. तो u bar is given to you 5 I cap plus 10 j cap. Time is given to you 5 seconds plus half a bar. A bar is 2 I cap plus 3 j cap. So 2 I cap plus 3 j cap और t square 25. 5 का स्क्वायर 25. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. You have to simplify this. Multiply. This is 25 by 2 by the way. ये 25 भी बाहर, ये 2 भी बाहर. तो 25 upon 2. सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूं मैं. सेकेंड ब्रैकेट मतलब पहले को तो हम कुछ कर नहीं रहे. पहला जो है टर्म वैसा ही है, मतलब 5 I कैप और प्लस 10 j कैप. इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर ही लो. तो यू विल गेट 25 I कैप प्लस 50 j कैप प्लस 25 by 2. 25 by 2 multiply by 2. 25 by 2 multiply by 2 I cap. 25 I cap. 25 I cap plus 25 by 2 multiplied by 3 j cap. 25 3 जा 75 by 2. 75 by 2 कितना होता है? 37.5 j cap. Now this is just multiplication, so no issues. How much is this? 25 I cap plus 25 I cap is 50, and this is 87.5 j cap. So you have this as displacement vector. ये displacement vector है. हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर. x कंपोनेंट मतलब 50 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 87.5 का स्क्वायर. गुड. व्हाट इज 50 स्क्वायर? हाँ 50 स्क्वायर 2500. 2500 प्लस 87.5 का स्क्वायर. How do you find out 87.5 का स्क्वायर?
How do you find square of any number ending with 5? I have told you many times. 87.5 था, मैं इसको 875 into 10 power -1 करूंगा और इसका मैं निकालूंगा स्क्वायर. तो ऑफ कोर्स 10 पावर -1 का तो 10 पावर -2 हो गया. मैंने आपको बताया था अगर 875 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर लिख लो, फिर 87 को उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो. तो 87 into 88 should be here. So 87 into 88 अब करना पड़ेगा. There is no other alternative. So that is why here I will tell you ऐसे cases में you directly better do 87.5 square from log book. आपके पास log book में एक square का टेबल ही होता है डायरेक्टली. If you have that log book with you, उसमें एक टेबल होता है and you can see 87.5 का square there. तो वो आप फाइंड कर सकते हो. But for now, I am doing it on calculator. You are not supposed to use calculator because it is not allowed for you. For me, it is allowed. So wait a minute, don't speak. 87.5 into 87.5, it is 7656.25. So it is 7656.25. Doesn't matter. Good. Then 7656 plus 2500 is how much? First. No. Wait. यहाँ पे जो 656 आपको आखिरी में दिख रहा है उसमें से 156.25 को अलग करो. 156.25 को अलग करो. कितना बचेगा? 7500 और 2500 10,000 हो गया. 10,000 में वापस जिसको अलग किया था put it here again. 10,156.25. हाँ, तो 10,000 का रूट कितना आता है? 100. So this is approximately 100 meter. Approximately. Exact calculations करने की जरूरत नहीं है. It's okay. It is acceptable up to this also. ठीक है. Good. अब क्या रह गया? डायरेक्शन. किसका डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन. क्योंकि आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पहले ही फाइंड करके रखा है. सो व्हाट इज रिमेनिंग इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वेट अ मिनट, उसका भी हम डायरेक्शन निकालते हैं. जस्ट अ मिनट. एंड ऑफ कोर्स एज यू ऑलरेडी नो, डायरेक्शन निकालने के लिए चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, व्हाट डू वी डू इज वी ऑलवेज टेक tan theta. So यहाँ पे tan theta लोगे तो it will be y component of displacement upon x component. What is y component of displacement? 87.5. What is x component of displacement? 50. तो इसको solve करना पड़ेगा. What is this by the way? Do you know 12.5 का टेबल? पता है? 12.5 1 जा 12.5 2 जा 25 4 जा 50 6 जा 75 है ना? बराबर बोल रहा हूं मैं. 12.5 1 जा 12.5 2 जा 25 2 जा 25 याद रखना. 4 जा 50. तो 75 अगर लिखोगे तो 6 जा 12.5 into 6 तो into 7 ये आ जाएगा 4 जा और ये आ जाएगा 7. तो दिस इज 7/4. तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 7/4. ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन. दिस इज व्हाट यू विल गेट. ओके देन द क्वेश्चन इज डन हियर. आई विल क्विकली रिपीट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस आर लिटिल लेंथी. आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था, आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर था, आपको 5 सेकंड के बाद पूछा है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो यू हैव टू इक्वेशंस. वन टू फाइंड आउट वेलोसिटी v bar equal to u bar plus a bar t. सेकंड वन s bar equal to u bar t plus 1/2 a bar t square. तो v bar equal to u bar plus a bar t करोगे so you will find out what is final velocity after 5 second in vector form. Good. यहां तक किया है. ओके एक्सेप्टेड. लेकिन जब वेलोसिटी बोला है तो इट इज ऑलवेज बेटर यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड. तो कैसे करते हो उसको? सिंपल.
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो पहले आइडेंटिफाई करो एक्स कंपोनेंट कौन सा है, वाई कौन सा है, पुट इट देयर एंड सॉल्व, यू गेट रफली 29 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने कोई बात नहीं, पुट इट अंडर रूट ऑफ 850, यू विल स्टिल गेट मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट मार्क्स हियर। तो अगर आपने इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला होता तो आई विल गिव यू फुल मार्क्स, नो इश्यूज। देन डायरेक्शन इज गिवन बाय एंगल। अब कभी कभी क्या होता है, एंगल डायरेक्शन कैसे बता रहा है, बताता है एंगल डायरेक्शन, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, मैंने कल भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ। यू सी, ये एक्स डायरेक्शन मतलब ईस्ट, ये नॉर्थ मतलब वाई। अगर मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट इज राइट इन बिटवीन, मतलब ये 45 डिग्री बनाता है। तो बताया एंगल ने डायरेक्शन बताया आपको, यस। तो अगर मैंने बोला 45 डिग्री ऑफ ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब दैट इज नॉर्थ ईस्ट। तो एंगल्स आल्सो गिव यू डायरेक्शन, तो दैट इज व्हाई जब भी डायरेक्शन पूछा होगा तो फाइंड आउट एंगल इन टर्म्स ऑफ tan, not sine, not cosine. Then s bar equal to u bar t plus 1 half a bar t square करोगे, same process you will repeat, you will find out what is magnitude of displacement, मतलब displacement vector, और उसका magnitude, मतलब this will give you distance by the way, and you will find out what is theta. Next question. 3.7. A stone is thrown with an initial velocity components of 20 meter per second along the vertical and 15 meter per second along the horizontal direction. Stone is thrown with initial velocity components. So they are telling you initial velocity मतलब ux and uy, और आगे बोला है 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग वर्टिकल, वर्टिकल मतलब uy होता है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ux इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। देन डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड। तो टाइम दिया है 3 सेकेंड। डिटरमाइन तो क्या क्या फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं। So you are supposed to find number 1, determine position and velocity. अब यहां पे आपके पास डेटा कंपोनेंट वाइज है, मतलब y का इनिशियल वेलोसिटी और x का इनिशियल वेलोसिटी दिया है। जब आपको डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी बोला है, मतलब आपको ये भी कंपोनेंट वाइज फाइंड करना पड़ेगा। मतलब यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज sx, you are supposed to find out what is sy, and velocity बोला है तो vx and vy, so vx and vy. Then what else they are asking you is, आगे बोला है determine the maximum height it will reach, तो determine what is h, maximum height याद होना चाहिए, uy square upon 2g, फॉर्मूला याद होना चाहिए, u square sin square theta upon 2g. Next, and the total distance traveled along the horizontal on reaching the ground, मतलब range. What is the maximum horizontal distance after reaching the ground? Do you remember it was range? Range of the projectile. ये projectile है. This is, they are not telling you projectile, but it is projectile. कैसे projectile? दो components दिए हैं, velocity के दो components. और they are asking you maximum height, ये तो projectile में ही था. Then they are also asking you what is total distance traveled along the horizontal on reaching the ground, that is range. तो range पूछा है, तो you should first identify what parameters they are giving you. तो ये this is really important, पहले identify करो, फिर क्या find करना है वो देखो, और of course आपको क्या दिया है और क्या find करना है ये दोनों पता लग गए तो formulas you will be easily able to recall. Of course it should be easy for you. जब आपको initial velocity दिया होता है और टाइम दिया होता है और फाइनल वेलोसिटी पूछा होता है तो कौन सा इक्वेशन यूज करते हो? v इक्वल टू u प्लस at. वेरी गुड, राइट। तो हमको u दिया है
मतलब ऑफ कोर्स मैं कंपोनेंट वाइज लिखूंगा, Vx इक्वल टू Ux प्लस AXT, Vy इक्वल टू Uy प्लस AYT. वी विल आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, सो पे अटेंशन हियर. ओके, तो ये कंपोनेंट वाइज बाद में लिखेंगे, हम पहले जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं. देन बट ऑफ कोर्स U और T दिया है, U और T दिया है. डू यू नो व्हाट इज A? डू यू नो व्हाट इज A? ऑफ कोर्स यू नो. प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट वाज 0 और y कंपोनेंट वाज -g और g की वैल्यू दी है 10, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गुड, सो यू नो a, t एंड u, तो v मिल जाएगा. उसके बाद आपको पूछा है पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, क्योंकि प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होने के बाद आपको पता है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, इट डजंट कम बैक अगेन, इट विल गो एंड लैंड समवेयर एल्स. तो s कैसे फाइंड करते हो? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. इसके भी x और y कंपोनेंट करने पड़ेंगे, so we will do that. Then नंबर 3, हाइट का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बता दिया, uy स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. Then number 4, रेंज का फॉर्मूला 2ux uy by g. That is why I told you, remember in terms of ux and uy, क्योंकि ज्यादा इजी है. या तो फिर आप बोलोगे हाँ क्या था याद नहीं आ रहा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, लेकिन साइन 2 थीटा क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो वेल 2ux uy by g मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे ux और uy ऑलरेडी पता है, हमको g भी पता है, तो why should I be writing equation of range as u square sin 2 theta by g? थीटा पता है कि आपको? नहीं, तो पहले थीटा फाइंड करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. इंस्टेड जो पता है उसके टर्म्स में लिखो, ux uy आपको दिया हुआ है तो राइट इन दैट टर्म्स. गुड, so this is all the data you have given, find and formula that you will be using. Good, यहां तक क्लियर? क्या क्या दिया है? डिड यू आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली? uy क्योंकि along the vertical, yes 20, 15 मीटर पर सेकेंड along the horizontal मतलब ux करेक्ट, आफ्टर 3 सेकेंड करेक्ट. ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है 0, करेक्ट. ay is -g क्योंकि बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज करेक्ट. फाइंड क्या करने के लिए बोला था? पोजीशन, लेकिन यहाँ पे दो पोजीशन हो गए, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, sx sy, देन vx vy, और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट एंड देन रेंज. गुड, तो ये सारे पैरामीटर को फाइंड करना है और ये सब गिवन है, इन दोनों में कनेक्टेड फॉर्मूलास यू हैव noted down. So now we can start solving one by one, and it is very very simple, extremely simple. So I will start with velocity. This is simple. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए Vx इक्वल टू ux प्लस AXT. यहाँ पे तो चिंता करना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सेलरेशन में देयर इज नो फोर्स. तो Vx इक्वल टू ux थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, नो चेंज एट ऑल. कहाँ पे? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में. Vy इक्वल टू uy प्लस AYT. What is uy? 20. What was AY? -10. -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम कितना था? 3. तो 20 - 30 इज -10 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट है? यस करेक्ट है. मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि while the projectile is moving, x कंपोनेंट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, y कंपोनेंट कम होते जाता है, मैक्सिमम हाइट पे इट बिकम्स 0. उसके बाद इट स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज नाउ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. यहाँ पे -10 आना मतलब वो मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर चुका है. क्यों? क्योंकि माइनस आया मतलब नाउ इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इतना पता होना चाहिए आपको. देन पार्ट 1 खत्म. पार्ट 2 में पोजीशंस फाइंड करने थे. Sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 AXT स्क्वायर. तो Sx इक्वल टू ux वाज 15. T कितना?
3 और ये 0 क्योंकि x कितना है 0, तो ये आ गया 45 मीटर. तो आफ्टर 3 seconds it is 45 meter along x with respect to origin. Good. Then sy is uyt plus 1/2 ayt square. Uy is 20, t is 3 minus 10 by 2 or 3 square. 1 and 5. This is 9 5 45. 60 minus 45. This is 15 meter. So with respect to ground, it is 15 meter high. Start ground से किया था, अब 15 मीटर तक है उसका हाइट. Then part 2 done. अब इसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला है? हाइट, मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट h मैंने पहले ही बता दिया, इट इज uy स्क्वायर बाय 2g. uy कितना था 20. 20 का स्क्वायर अपॉन 2 into 10 मतलब 20 स्क्वायर अपॉन 20 मतलब कितना 20. तो मैक्सिमम height is 20 meter. Okay, then last, that is range. Range is 2ux uy by g. 2ux, ux कितना था 15, ये कितना है 20 और ये कितना है 10. कैंसल कैंसल 60 मीटर. अब हमारे आंसर राइट है कि रॉन्ग कैसे वेरीफाई कर सकते हो? कर सकते हो. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट 3 seconds? 45. लेस देन रेंज? यस, मतलब करेक्ट है. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं होगा ना फिर जंप करके वापस आएगा. नो, बिकॉज दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन. मतलब मैक्सिमम रेंज अगर 60 है तो एट 3 seconds इट इज समवेयर ओवर हियर. कैसे पता लगा? व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? 20. व्हाट इज हाइट एट 3 seconds? 15. मतलब डेफिनेटली वो मैक्सिमम पॉइंट क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है. दिस इज हाउ यू कैन नो. फिर भी कंफर्म करना होगा तो एक्स्ट्रा पैरामीटर जैसे कि टाइम ऑफ एसेंट फाइंड कर लो. हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम ऑफ एसेंट? भूल गए. uy by g. टाइम ऑफ एसेंट वाज u sin थीटा by g, लेकिन u sin थीटा is uy. तो टाइम ऑफ एसेंट इज uy by g. करेक्ट. व्हाट इज uy? 20. व्हाट इज g? 10. तो 2 सेकंड होने के बाद वो था मैक्सिमम हाइट पे. हमको टाइम कितना बोला है? 3 सेकंड. मतलब डेफिनेटली मैक्सिमम हाइट का पॉइंट वो क्रॉस कर चुका है. तो अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर यहाँ पे माइनस आ रहा है दैट इज राइट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के बाद ही तो उसका वेलोसिटी नीचे पॉइंट करेगा. इज दिस क्लियर? गुड. तो व्हाट आई वांट इज, देखो ये फॉर्मूलाज यूज करना, कैलकुलेशंस करना एनीवन कैन डू. क्या है? 2-3 फॉर्मूला है, पुट वैल्यूज. बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स आउट ऑफ इट? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो यू हैव टू नो कि जो भी आंसर मैंने फाइंड किया करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज 60 मीटर. हमारा 3 सेकंड के बाद आया 45. राइट. अगर यहाँ पे 65 75 आता तो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि रेंज इज 60. देन मैक्सिमम हाइट 20 और यहाँ पे 15. ओ मतलब अभी तो थोड़ा सा केस ऐसा है कि फिर या तो यहाँ भी हो सकता है, अदरवाइज इट कैन आल्सो बी हियर, क्योंकि दिस इज आल्सो 15 मीटर, दिस इज आल्सो 15 मीटर एंड द मैक्सिमम हाइट इज 20. तो चेक करो टाइम ऑफ एसेंट कितना? 2. टाइम ऑफ एसेंट इज टोटल टाइम फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, और हमारे पास ये आता है 2 सेकेंड और गिवन में है टाइम 3 सेकेंड. मतलब डेफिनेटली ये आगे बढ़ चुका है. इसका मतलब 15 मीटर हाइट करेक्ट है. अब ये इसका y कंपोनेंट नीचे पॉइंट करना चाहिए था, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आया है. सो आर ऑल द आंसर्स आर correct. So this is how you are supposed to solve. Next question. An aeroplane has a run of 500 meter to take off from the runway. So basically अगर कभी फ्लाइट में बैठे होंगे तो you must have seen this. Aeroplane first of all travels little bit of distance before it takes off. तो क्या होता है कि this aeroplane has to first with increasing speed and then it takes off. ऐसा क्यों? क्योंकि खड़े खड़े तो डायरेक्टली जा नहीं सकता against the gravity. तो first
Helicopter can go, but helicopters are lightweight and they have less sitting capacity. But aeroplanes, they are very bulky. Additionally, there are more than 300 passengers, so it cannot directly go like this. So it has to first achieve some velocity and then it takes off. तो ऐसा है कि जो ट्रैक है, रनवे है, it is 500 meter long. मतलब definitely distance that this aeroplane will cover before taking off is maximum distance is 500 meter. So given S is 500 meter. Okay, it starts from rest. Initial velocity is 0 and moves with constant acceleration. अभी find करेंगे बाद में हम. Okay, to cover the runway in 30 seconds. So this is what is given to you. What is the velocity of the aeroplane at the takeoff? So you are supposed to find out what is the final velocity at the point of takeoff. Then, of course, आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेंगे, दो. y2 because you will say y2 because v equal to u plus at. ठीक, correct. u0 t 30 पर a कहाँ पता है आपको? नहीं पता. Do you know a? No, you don't know a. Then क्या करेंगे? Then you should be using s equal to ut plus 1/2 at square to find out a from here. क्योंकि s पता है, u पता है आपको, t you know and you can find out a. So from here, then you might say कि v square equal to u square plus 2a. s क्यों नहीं यूज करते? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? अगेन द सेम प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन नहीं पता. मतलब अल्टीमेटली ए तो फाइंड करना ही है. हाँ, तो ए फाइंड करना है तो फिर हम ये तो इक्वेशन यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज ए एंड देन पुट दैट वैल्यू ऑफ ए इन v इक्वल टू u प्लस at. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट यू आर सपोज टू फाइंड आउट a फ्रॉम s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. s कितना है? s 500. s is 500. 500 equal to u 0 half a और t कितना? 30 का स्क्वायर. So t is 30 square over here. So it is 30 square. Then ये 30 का स्क्वायर आपको मिल गया. So solve this now. It is simple. What is 30 square? 900 by 2 450. 500 minus 450 हो गया गलत. 500 equal to this is 900 by 2 450a. माइनस करेंगे कि डिवाइड करेंगे? गुड. तो 5 10 जा 9 जा. तो एक्सेलरेशन इज 10 by 9 meter per second square. Then v equal to u plus at. It was anyways 0. a was 10 by 9 and time was 30. 3 and 10. This is 100 by 3. What is 100 by 3? Exactly. 100 by 3 is 33.33. So 100 by 3 is 33.33 मीटर पर सेकेंड. अब अगर आपको याद होगा, मैंने कल के लेक्चर में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 by 18. और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आता है 18 by 5. तो 33.33 into 18 by 5 कर लो. ये इजी है. रफली 1 जा and 5 1 जा and 5 6 जा 18 6 जा. रफली approximate. What is 18 6 जा? 5 1 जा 6 point something 6.2 मान लो. What is 18 6 जा? 108 और आगे का 0.2 115 रफली. हाँ, 120 किलोमीटर पर आवर. आंसर आपको 120 किलोमीटर पर आवर में दिया है, बट this answer in meter per second is also acceptable. So no one will tell you why did you not write down in kilometer per hour, unless
इट इज आस्क्ड, बोल सकते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, तो इन दैट केस आपको किलोमीटर पर आवर में ही फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ बोला है कि वैसा नहीं, हाँ तो मीटर पर सेकेंड इज ओके। सो दिस इज 33.3 मीटर पर सेकेंड और 120 किलोमीटर पर आवर, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moving along a straight road with a speed of 120 km per hour is brought to rest by applying brakes. The car covers a distance of 100 meters before it stops. Calculate the average retardation of the car, मतलब deceleration, the time taken by the car to come to rest. So in the given parameters, सबसे पहले आपको दिया है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 120 किलोमीटर पर आवर, तो u इज 120 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, पता है, लेकिन अभी अभी आपने देखा 120 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 33.33 मीटर पर सेकेंड, 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो डोंट वेस्ट योर टाइम अगेन इन कन्वर्टिंग दिस, डायरेक्टली लिख दो। देन इज ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0, गाड़ी रुकने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। और ब्रेक मारने, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब आपने ब्रेक अप्लाई की तब से गाड़ी रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ 100 मीटर। तो बाय द वे आगे जेईई नीट में आप देखोगे इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, द डिस्टेंस आफ्टर विच द व्हीकल स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो कुछ नया नहीं है, डिस्टेंस ही है, सिर्फ स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं बिकॉज द व्हीकल इज फाइनली कमिंग टू रेस्ट, ऐसा है। तो एस आपको दे दिया है, आपको बोला है यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1। एक क्या फाइंड करना है, एवरेज रिटार्डेशन मतलब ए, और नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं। नंबर 2, टाइम टेकन बाय द व्हीकल, बाय द कार टू कम टू रेस्ट। देन formula, of course, formulae, because you will be using more than one here. Number 1, v square equal to u square plus 2as, क्योंकि v पता है, u पता है, s पता है, तो a मिल जाएगा। तो गुड, वेरी गुड, v square equal to u square plus 2as, वेरी गुड। नंबर 2, v equal to u plus 80, क्योंकि ऊपर के इक्वेशन से a मिलेगा, v पता है, u पता है, मतलब v equal to u plus 80, तो v you know of course, a you will find out and t they are asking you, so v equal to u plus 80, very good। So this is very simple question number 1, v square 0, u square, अब that is the problem here। अब ये कन्वर्ट करके रखा है ना, तो देन इट इज एन इशू। कन्वर्ट नहीं करते तो चल जाता, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में रखोगे 120 मतलब 12 into 10, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू डू कैलकुलेशंस। एक मिनट देखते हैं सिंप्लीफाई करके। 5/18 इफ आई डू दिस, 2 जा 3 जा 2500, गुड। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, इट इज बेटर, इट इज गुड। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी सिंपल थिंग, 120 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकेंड। ये 0 यू नो इट इज 10, तो 12 into 10 मतलब ये 2 जा और ये 3 जा, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। 12 into 10 into 5/18, तो 2 जा एंड 3 जा, तो ये 20 आएगा। 20 into 5 is 100, तो 100/3, तो ये 120 किलोमीटर पर आवर मतलब 100/3 किया था क्या हमने, यस, वेरी गुड। तो यू ऑलरेडी नो दिस इज 100/3, तो यहाँ पे 100/3 स्क्वायर, जिनको अभी भी नहीं समझा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 33.33 मीटर पर सेकेंड मतलब 100/3 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करना इजी है। प्लस 2as प्लस 2a, और s की वैल्यू कितनी
100. वेरी गुड, हमारे लिए और भी काम आसान हो गया. सो दिस इज +2as. s is 100. तो you can write this as 2a into 100 इक्वल टू, इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा -100 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. 100 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस, ये एक 100 और ये कैंसल. तो यू विल गेट therefore 2a equal to -100 by 9 1 and 50. तो a equal to -50 by 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 50 by 9, लेकिन माइनस आएगा, मैंने बताया था दिस इज रिटार्डेशन, तो माइनस आ गया. नंबर 2, v equal to u plus at. v equal to u plus at. v is 0, u कितना 100 by 3, अब ये भी लिखा, और a कितना आया 50 by 9t. अब इसको यहां शिफ्ट कर दिया तो 50 by 9t इक्वल टू 100 by 3. 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा, ये 3 वहां गया 6. t इक्वल टू 6 सेकेंड. तो गाड़ी को रुकने में लग गए 6 सेकेंड. सो करेक्ट है. So that's it for today. We will stop at this question.